Okay, so let us start. Good morning. So we were discussing the flexible pavement design, right? Using the modified CVR method or the IRC 37. See, for flexible pavement, the code which we use is known as the IRC 37. Now, if someone asks you what is the full form of IRC, anyone? Can anyone tell me what is the full form of IRC? क्या हो सकता है IRC का full form? बोलो अरिंदम. इंडियन रोड कांग्रेस। Indian रोड ROADS. Okay, ROADS, Roads Congress. Okay, हाँ so मैम। this is basically here they have provided you some standard values, some different catalogs are there. Okay, and different charts are there, as well as there they have itself given all the procedure, whatever factors which is required to calculate pavement thickness or to design the flexible pavement thickness. All the details has been already provided in this code. Okay, here I have just described in a brief. See, this I've already discussed this what are the different factors. Okay, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में. इफ समवन वेर एब्सेंट देन प्लीज गो थ्रू दैट वीडियोस. ओके, चलो आज हम लोग इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम करते हैं. अच्छा, ये व्हीकल डैमेज फैक्टर वाज क्लियर. तो हाउ टू सॉल्व द व्हीकल डैमेज फैक्टर? See, this is the main formula. Okay, and these are the different factors that we need to calculate this capital N. Once we know this capital N, convert that value will be in cumulative standard Excel. Now we need to convert that into MSA. Then how we will convert? Whatever value comes using this formula must be multiplied with or must be divided by 10 to the power 6. Okay, or must be multiplied with 10 to the power minus 6. Then we will get, we have converted that cumulative standard Excel to the million standard Excel. Okay, so once we know this N value and your CVR value will be provided to you, then we can easily calculate or we can easily determine the thickness, okay, of individual layers. See here, we need to provide this. Okay, this thing will be given in the chart, or sorry, in the IRC code. You can easily use IRC code. Okay, chart from this IRC code and calculate the total thickness. See, if you use this chart, we will obtain only what we will determine, we can calculate only the total thickness. Okay, we know that pavement is actually what? It is a layered structure, right? So what is the first layer known as? It is known as the surface course. Okay, second layer is what? It is a, what is the name of the second layer? सेकेंड लेयर का नाम क्या था, बोलो. सरफेस, फिर आएगा क्या? दिस इज सरफेस. ये वाला कोर्स का नाम क्या है? ये वाला कोर्स का नाम क्या है? एंड लास्टली फाइनली एक कोर्स रहता है, that is actually the subgrade. Okay, and this total thickness from subgrade, above the subgrade till the surface course or surface of the pavement is known as the total pavement thickness. Okay, so not only the total pavement thickness we have to estimate, we have to estimate this individual layer thickness also. Okay, so this is our duty or this is our motive of the pavement design. Okay, now how we will estimate this individual layer and the total layer? For this, we know pavement thickness, it depends upon what? It depends upon the number of axle loads, right? Number of repetitive cumulative axle load, which is denoted by capital N. Okay, so this is that one. See, this design traffic is nothing but the N. Okay, so this design traffic is nothing but your N value. Okay, so it depends upon this N value and also the property of the soil. What is the foundation layer known as? It is known as the subgrade. So what is, how we will assess this, evaluate the property of this subgrade? For that factor we need to calculate, which is known as the CBR. Okay, CBR, how to calculate experimentally we have already described. Okay, but
in this problem they will give you this value. CBR will be given, only we need to calculate this n value. Okay, and n value depends upon several factors which I've already discussed. What are, if the values are not provided to you, then we need to assume, or you can simply use IRC code. There all the values has been provided in this IRC code. Okay, so sometimes they may ask you, they will give you this chart also along with you. Okay, if code is not allowed, then they will provide you this chart. Then how to calculate the thickness? For that, see, we must know this n value and also this CBR value. Okay, then only we can calculate what is the total pavement thickness from this axis. Clear? This will give you the total thickness. Now they will ask you, they might ask you what is the individual thickness also. Okay, then in that case we have to use some catalogs. Okay, that was the chart, design chart. Now in that case, you see, these are the catalogs. Okay, and this catalog values, again, how to use this catalog? Anyone? How can we use? For using this catalog, first we must read this first sentence. Okay, it is for this chart, or this catalog is used for recommended for design traffic of range 1 to 10 MSA. Okay, so if your n value lies between 1 to 10 MSA, see here it is MSA, that's why I'm saying we need to convert the cumulative standard axle load into the MSA by dividing it by 10 to the power 6 value. Okay, so once you know this n value, and the next step should be what? See, there are several charts are there. Okay, so how we will know that which chart is appropriate for our design? So now after reading this, see, it is for 1 to 10 MSA, this is also for 1 to 10 MSA, this is also for 1 to 10 MSA. Then which chart we have to use? We have to see the CBR value then. Okay, whether the CBR that is provided to you, it matches with which chart, that we need to see. Okay, so see, if it is given CBR2, then you have to use this catalog. If your CBR value is 4, then you have to use this catalog. If it is 3, then this catalog. Okay, and from this catalog you can easily see that these are the cumulative MSA value, n values, and their corresponding total thickness, and these are the individual layer thickness. Say for example, if your n value is 10 MSA, then what is the total pavement thickness required? That is 700 mm total thickness. Okay, all the 3 layers together, thickness, it is 700 millimeter. Okay, as well as we can determine what are the individual layer thickness. Okay, so see here, first layer comprises of 2 layers, 2 sub layers, which is your wearing course, then binder course. Both are known as the bituminous surfacing course, surface course. Okay, then comes the granular base, then comes your sub base. So this way you can calculate. Okay, clear? Procedure is clear, right? Now can we solve when we go to the numerical? Acha, why so less attendance today? Okay, so let us solve. Okay, see, this is the example of a VDF, how to calculate vehicle damage factor. Okay, for this I've already given you the formula based on volume or based on frequency. Okay, volume means number, frequency will be in percentage. If this number of vehicles is given in percentage, then we have to use this formula, and if it is given volume of the traffic, then we have to use this formula. Okay, see here, 2 formulas are there. This formula for calculating the VDF. Okay, where V1 is what? This is the volume of a axle load of W1 value. Okay, V2 is the number of vehicles whose axle load is, yeah, we can say average axle load is W2. Okay, V3 is the number of the traffic whose axle load or the average axle load is, yeah, W3. Okay, whereas WS is the standard axle load. Okay, and that you have to remember. Standard axle load for single axle and for tandem axle, both the values must be remembered. Okay, they won't provide you, so you need to remember these values. So can you tell me what is the value of the standard axle load for single axle?
in kg? What is the value of SWS in kg for single axle? This is standard. Okay, स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना है बोलो? सिंगल एक्सेल के लिए स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना होना चाहिए? ये हम 10 बार बोल चुके हैं। ओके, मतलब कई बार बोल चुके हैं। टेल मी, एनीवन? प्लीज बी, डोंट बी क्वाइट, थोड़ा रेस्पॉन्स करो। বলো কি হবে? স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল লোড আমি কতবার বলেছি? সিঙ্গেল অ্যাক্সেলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেল লোড কত হয় বলতে পারবে? হ্যাঁ না সেটা তো বলো। সাপোজ এরকম আছে, কি আছে? চাকা। दिस इज द सिंगल एक्सेल, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू? यहाँ पे जो लोड आएगा, गाड़ी से जो लोड आएगा वो जाएगा कहाँ पे? एक्सेल में, फिर जाएगा तुम्हारा यहाँ पे व्हील लोड में जाएगा, ठीक है, तब जाके वो नीचे ट्रांसफर होगा, राइट? हमारा ग्राउंड में ट्रांसफर होगा लोड। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड लोड? ये स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन? কত টন কত কেজি বলেছিলাম না? অর্পণ, ত্রিনঞ্জন, অরিন্দম বলো, মনিরুল, সুদীপ্তা আবার বেরিয়ে গেল। এরকম কেন গো তোমরা? কিছু রেসপন্স করো না, কোনো ও নেই। ক্লাসগুলো যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো তো অ্যাটলিস্ট শোনো মন দিয়ে, তাতে মনে রাখতে পারবে। এই বলো তো তোমরা, এটা আমি অনেকবার বলেছি, তোমাদের 6 সেম থেকে বলে যাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল লোড ভ্যালু। অরিন্দম, আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. বলো কত কেজি হয়? ম্যাম ভুলে গেছি ম্যাম। ভুলে গেছো? আগের সপ্তাহে বলেছি, ভুলে গেছো? আগের সপ্তাহে ক্লাসে জয়েন করতে পারিনি তো। তো ক্লাসগুলো জয়েন করে নি মানে দেখতেও পারবে না? না ম্যাম, দেখা হয়নি। কেন দেখবো ম্যাম, এত ব্যস্ত? দেখবো। আর বাকিরা যারা অ্যাটেন্ড করেছে তারা বলো। এটা আমি এমসিকিউ তে অনেকবার দিয়েছি, তোমাদের সিএ 1 এও তো দিয়েছি। এরকম করলে বলো আমাদের কিরকম মোটিভেশন পাবো তোমাদেরকে পড়ানো? তোমরা যদি ঠিকঠাক ভাবে না পড়াশোনা করো। দিস ইজ দ্য ভ্যালু 8160 কেজি or 8.16 টনস। এটা আমি আবার বারবার আমাকে বলতে হবে না, ঠিক আছে? একবার দেখো, মনে রাখো এটা। 8160 kg for single axle or it is 8.16 ton। टन কিভাবে কেজি कन्वर्ट करते जानो, बाय 100 করে दिते হয়, ठीक है। एंड इसको पहले न्यूटन में कर सकते हो, फिर किलो न्यूटन में करके देखो, 80 किलो न्यूटन आएगा। ओके, whereas for tandem axle मतलब क्या है? टू tandem axle का मतलब क्या बोलो? which is tandem, this is single axle, तो ये क्या है? दिस इज द टैंडम एक्सेल। देखो टैंडम मतलब डबल होता है, ठीक है। सी 2 एक्सेल, ओके। तो इस वाले में लोड कितना ट्रांसफर हो जाएगा? इस वाले में ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो कितना है? 14,968 केजी। ओके, सो इसको अगर टर्न में कन्वर्ट कर दोगे तो डिवाइड बाय 100, सॉरी 100 कर दो। अच्छा 100 नहीं, এটা কি করেছি আমি? ডিভাইড বাই 1000, সরি डिवाइड बाय 1000 করলে ওই কুইন্টাল হচ্ছে 100, ठीक है। 1000 করলে 14.96 टन, फिर उसको न्यूटन में कन्वर्ट करके किलो न्यूटन में कन्वर्ट करो, इट इज कमिंग आउट 140 किलो न्यूटन। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज, प्लीज नोट इट डाउन। अब तुम मुखस्त करो, जो करो अभी याद रखो ये, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस फॉर्मूला? देखो ये नोट डाउन करो, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। और इफ इट इज इन फ्रीक्वेंसी, देखो ये तो नंबर में आ रहा है, ओके। अगर बोलेगा नहीं फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में आएगा तो यू हैव टू यूज दिस वन, ओके। मतलब
4%, मतलब कितना होगा 0.04 यहाँ पे, ओके, या 9% होगा तो 0.09 यहाँ पे बिठेगा, ओके। तो ये कैलकुलेट करके बोलो तो, कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू? हाँ, कहाँ गया? See, this will be the question, okay. This way they will give you and ask you calculate VDF. So now this is what? This is the axle load range. देखो axle load range in tons, ठीक है, but we have to take only one axle load. तो कौन सा लेंगे? इनका एवरेज लेंगे, ठीक है। So W1 will be average of these two values, W2 will be average of these two values, okay. ऐसे ऐसे करके सबका निकालो एवरेज, यहाँ पे लिख लिया W1, W2, W3। whereas 4% फ्रीक्वेंसी में दिया है, so F1 will be 0.04, F2 will be 19% मतलब 0.19, okay. Then they use this formula, VDF का ये formula I have already explained कैसे हुआ है ये formula, okay. So F1 into W1 by WS to the power 4, ये वाला देखो फोर्थ पावर लॉ है। बेसिकली VDF मतलब क्या है? व्हीकल डैमेज फैक्टर, द क्या बोलते हैं, इट इज द डैमेज कॉज्ड बाय द व्हीकल टू द पेवमेंट, ओके, विथ रिस्पेक्टिव टू द स्टैंडर्ड एक्सल लोड। मतलब तुम्हारा गाड़ी अगर जा रहा है उस रास्ते से तो कितना डैमेज करेगा रेस्पेक्टिव टू दी स्टैंडर्ड एक्सल लोड, मतलब वही रास्ते से स्टैंडर्ड एक्सल लोड भी जा रहा है, वही रोड से तुम्हारा गाड़ी भी जा रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कितना कर रहा है तुम्हारा, तुम कितना डैमेज कर रहे हो, सो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ देयर वेट, राइट। वो गाड़ी अगर स्टैंडर्ड बहुत हेवी है तो वो ज्यादा करेगा, मतलब तुमसे अगर बहुत हेवी है तो वो ज्यादा डैमेज करेगा, अगर तुम बहुत हेवी हो स्टैंडर्ड एक्सल से तो तुम ज्यादा डैमेज करोगे, ठीक है। सो द डैमेज इज डिपेंडेंट अपॉन द वेट। तो डैमेज कॉज्ड बाय योर व्हीकल डिवाइडेड बाय डैमेज कॉज्ड बाय स्टैंडर्ड एक्सल लोड को हम लोग वेट के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, सो योर वेट बाय स्टैंडर्ड वेट, राइट, टू द पावर 4 कर देंगे, क्योंकि ये 4 मतलब टू द पावर 4 टाइम्स ऐसा होता है, इफेक्ट होता है डैमेज, ओके, वेट के ऊपर। तो ये वाला फैक्टर आ रहा है, सो दिस इज फोर्थ पावर लॉ। नाउ अब देखो तुम्हारा टाइप का गाड़ी क्या, तुम अकेले गाड़ी जाते हो, तुम्हारा टाइप का क्या अकेला ही गाड़ी है और किसी का नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, बहुत सारे लोगों का वैसा तुम्हारे टाइप का मॉडल का ही गाड़ी हो सकता है जिसका सेम एक्सेल लोड हो सकता है, राइट। तो क्या होता है कि हमको काउंट भी चाहिए कि कितना बार जा रहा है वैसा वाला गाड़ी, सो दिस इज द काउंट, ओके, आइदर इन V1 टर्म्स और इन F1 टर्म्स, ठीक है। अगर V1 होगा तो नीचे सबको डिवाइडेड बाय जितना भी गाड़ी जा रहा है डिवाइड कर देना है, अगर फ्रीक्वेंसी है तो सिंपली फ्रीक्वेंसी के साथ ये कर देना। देखो यही तो दिया है ना कि ये वाला रेंज का गाड़ी कितना बार जाएगा। अगर वी आर टेकिंग सिंस दिस इज इन परसेंटेज, तो सैंपल इज हाउ मच, कितना सा गाड़ी को हम लोगों ने एज ए सैंपल कलेक्ट किया है, ये लोड का कलेक्ट किया है, दैट इज द 100 सैंपल, ओके। सो आउट ऑफ 100 ये वाले रेंज का गाड़ी जिसका लोड इतना है कितना बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है, मतलब 4 ठो गाड़ी जा रहा है, ठीक है। ये वाले रेंज का आउट ऑफ 100 कितना व्हीकल्स है? 19 व्हीकल्स है, ठीक है। तो जितना ज्यादा व्हीकल होगा डैमेज भी उतना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए देखो मल्टीप्लाई कर दिया है ये सबसे, ओके। तो यहाँ पे देखो करके, नाउ सिंपली सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड हियर WS। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, सिंगल एक्सेल है, टेंडम एक्सेल है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सिंगल एक्सेल, ये वाला एक्सेल लोड हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं दैट इज फॉर सिंगल एक्सेल, ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ WS? अब बोलो WS अब कितना लेना चाहिए? स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कितना होगा सिंगल एक्सेल के लिए? तो यहाँ पे WS जो फॉर्मूला है W1 by WS, तो उसमें WS का वैल्यू कितना पकड़ेंगे हम? दिया नहीं है, दैट इज अप टू अस, you have to assume that value. Now what is that value? তো ম্যাম Let যেটা বললেন সিঙ্গেল অ্যাক্সেলের জন্য कत 8.16 টন। yes 8.16 टर्न। अब देखो यहाँ पर टर्न क्यों बोले, बिकॉज दिस इज इन टर्न, ये सब वैल्यू है टर्न में, ओके। W1 देखो ये भी टर्न है, इन दोनों का एवरेज ऑब्वियसली टर्न में ही होगा, तो दीज आर इन टर्न, ठीक है, वेरी गुड, एटलीस्ट अटेंटिव छिले, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सिंपली कैलकुलेट करो, सो वी विल गेट दिस वीडियो क्लियर। इन मेनी केसेस, इन मेनी प्रॉब्लम ये वीडियो तुमको प्रोवाइड किया जाएगा और दे विल गिव यू दिस मैनर, देन बोलेगा ऐसा चार्ट देगा, बोलेगा तुम खुद ही VDF निकालो और बाकी का खुद ही कैलकुलेट कर लो, ओके। सो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल। तो बोलो क्या है, अ टू लेन, n का वैल्यू निकालना है हमको, ओके, n का वैल्यू निकालना है। सी अ टू लेन सिंगल कैरेज वे, ओके, ये देखो सिंगल कैरेज वे है, কোথায় ছিলে শুভজিৎ?
बताएगा लॉ। टू लेन सिंगल कैरेज वे, क्यों? बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग एन, तुम्हारा देखो फैक्टर्स क्या क्या है वाइल कैलकुलेटिंग एन। देखो ये कैलकुलेट करने के टाइम में क्या क्या फैक्टर से आ रहा है, ट्रैफिक लग रहा है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए देखो ये सिंगल लेन है या टू लेन है बोल दिया है, ओके। और क्या बोलेगा, सिंगल कैरेज वे है या डुअल कैरेज वे है, ओके, ये सब बोल दिया गया है। तो बोला देखो टू लेन सिंगल कैरेज वे इज टू बी डिजाइन फॉर द डिजाइन पीरियड ऑफ 15 years। नाउ सी इन दिस केस ये स्मॉल लेन लग रहा है, दिस इज योर डिजाइन पीरियड, तो डिजाइन पीरियड भी दे दिया है, वेरी गुड। Now बोला है the total two-way traffic intensity is in the year of completion of construction, okay, which is 2000 CVPD commercial vehicle per day। अब ये वाला बोलो ये A है या P है, हम एक बोले थे P, ठीक है, और एक बोले थे A, ठीक है। P क्या है, बिफोर कंस्ट्रक्शन वाला ट्रैफिक, मतलब सपोज अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो। ए क्या है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वो वाला ट्रैफिक, ठीक है। अब इस हिसाब से बोलो यहाँ पे ये ए है ना पी है, दिस वन, द टोटल टू वे ट्रैफिक इंटेंसिटी इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 2000 CVPD। तो ये ए है कि पी है, इज इट द ए ट्रैफिक और द पी ट्रैफिक? तुमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया इस वाले ईयर से, ऑब्वियसली तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा, मिनिमम 3 to 4 years लगेगा। तो देखो 3 to 4 years मतलब 2023 में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है, तब ट्रैफिक क्या था उस जगह का, दैट इज ए, ओके। तो व्हाट इज दिस 2000 CVPD क्या है, ए है या पी है बोलो? এই হবে আই থিংক। হয়তো এত কনফিউশন কেন, এখানে তো লেখাই আছে, সি in the year of পরে কমপ্লিট হয়। completion, right, in the year of completion of construction, so this is A only, right, so this is A, clear? in many cases they will give you P, ठीक है, इनिशियल ट्रैफिक बोल के P दे देगा, तब हमको समझना है कि ये A दिया कि P दिया। अगर P देता देन देयर वाज एन इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, A और P के बीच का रिलेशन, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, सो फ्यूचर वैल्यू इज इंक्रीज होगा, राइट, कितना इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज होगा, ठीक है, पर एनम आर रेट से ये इंक्रीज हो रहा है ट्रैफिक, सो थ्रू एक्स ईयर, पर ईयर आर रेट से बढ़ रहा है, तो थ्रू एक्स ईयर कितना बढ़ेगा ये पी वाला ट्रैफिक, सो दिस इज द रिलेशन पी इंटू 1+r⁴ एक्स, एक्स इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वेदर इफ इट इज प्रोवाइडेड तो वेरी गुड, एक्स का वैल्यू वही रखो, अगर नहीं दिया तो 3 to 4 years के अंदर में रखना है, ओके। एंड आर if it is not given, again we need to assume it, which is 7.5%, मतलब every year traffic increase हो रहा है by how much, by 7.5%, okay। अगर इसको लिखोगे यहाँ पे R में तो it will be 0.075, okay, क्लियर? देखो व्हीकल डैमेज फैक्टर गिवन, तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इन मेनी केसेस लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं दिया रहेगा, देखो आर भी नहीं दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर भी दिया है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी दिया है, ओके। तो लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच वैल्यू, कि ये सिंगल कैरेज वे है ना डुअल कैरेज वे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सिंगल लेन है, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन है, क्या है उसके ऊपर ये लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिपेंड करता है, जो हमने बोला है पिछले क्लास में। देखो कहाँ गया लेन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो दीज आर द फैक्टर्स, ओके। फॉर सिंगल कैरेज वे हम बोले थे सिंगल लेन के लिए क्या होता है कि सब गाड़ी एक ही लेन से जाना पड़ेगा, तो मतलब 100 में 100 व्हीकल ही वो वाला लेन यूज करेगा, सो डी लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 101, ओके। जब 2 लेन होगा तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा कि वो लेन यूज नहीं करके हम दूसरा लेन में चला जाए, तो वो वाला लेन का लेन डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, मतलब अगर 100 व्हीकल जा रहा है तो उसमें से 75 उस वाले लेन से जाएगा और बाकी का 25 कोई और लेन से जाएगा, ओके। तो ये 75%, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ये डी भी घटता जा रहा है, ओके।
तो दिस क्वेश्चन में क्या दिया है, इट इज सिंगल कैरेज वे एंड 2 लेन बोल रहा है, तो डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट इज 2 लेन सिंगल कैरेज वे, क्वेश्चन में दे दिया है। ओके, सो योर डी इज 75% इफ नॉट प्रोवाइडेड, राइट, तब हमको ये एज्यूम करना पड़ता था, बट इन द क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, मतलब कंडीशन भी दिया है और तुमको आंसर भी दे दिया कि लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये पकड़ो बोल के। ओके, 75% which is 0.75. So now calculate design traffic in MSA. चलो ट्रैफिक MSA करो। व्हाट इज द फॉर्मूला, नोट डाउन, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन करो। दिस इज द फॉर्मूला, राइट डाउन, n इक्वल्स टू 365 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू a विच इज द ट्रैफिक आफ्टर कंस्ट्रक्शन, इसलिए a है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर d एंड दिस इज व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF f, ओके, and divided by r, r is the traffic growth rate in decimal point में होना चाहिए, परसेंटेज में नहीं, where n is the number of years। पहले नोट डाउन करो ये वाला इक्वेशन, एवरीवन नोट इट डाउन, नोट किया ये वाला, লিখলে করেছি ম্যাম। করেছো তো, আমি আবার আনসার এটা দেখাবো না কিন্তু, শুধু আমি তোমাকে ডাটাগুলো দেবো, সেগুলো দিয়ে আবার সলভ করো। तो क्या क्या वैल्यू दिया है, लेट अस सी, यहाँ पे 2 लेन सिंगल कैरेज वे, सो डी दे दिया है। ओके, सो कितना ईयर है, एन, एन इज योर 15 ईयर्स। देखो कभी कभी तुमको ईयर्स भी नहीं देता है, दे विल सिंपली टेल यू वेदर इट इज अर्बन रोड, वेदर इट इज नेशनल हाईवे, वेदर इट इज स्टेट हाईवे, क्या है, उस हिसाब से तुमको ये ईयर्स भी एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन इन द कोड कि कौन सा टाइप का रोडवे या हाईवे के लिए ये ईयर्स कैसा होगा। ओके, बोला है ए दिया है, ए का वैल्यू कितना है 2000, CVPD मतलब कमर्शियल व्हीकल पर डे। ओके, और व्हीकल डैमेज फैक्टर F दिया है 3, R दिया है एज्यूम 75%, 7.5%, तो 0.075। ओके, और क्या लगेगा, D दिया है, D कितना है, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 2 लेन सिंगल कैरेज में बोला है, तो 75% विच इज अगेन 0.75। तो कैलकुलेट, ये है फॉर्मूला, कैलकुलेट करो। देखो LSF भी दिए थे हम, इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड एज्यूम इट एज 1। ओके, लोड सेफ्टी फैक्टर। So what is the value of n, design traffic or the number of cumulative repetition of standard axle load। देखो ये क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, क्या है स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, क्यूमुलेटिव रिपीटेशन, तो इसीलिए ये फॉर्मूला ही है क्या, सॉरी इसका यूनिट है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल। ओके, इसको हमको एमएसए में कन्वर्ट कर देना है, तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको डिवाइड बाय 10/6 कर देना है और मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻⁻6। सो प्लीज calculate what is the value you are getting। या बोलो করছো তোমরা, ক্যালকুলেট বলো তো আগে। কোনো অ্যাক্টিভনেসই নেই তোমাদের, গো কি হয়ে গেছো তোমরা, বুড়ো হয়ে গেছো নাকি লকডাউনে। হ্যাঁ না, নাও কিছু বলে না। তো 365 ইন্টু 1 প্লাস আর হচ্ছে কত, 1 প্লাস 0.075, সো 1.075। ওকে, টু দি পাওয়ার n is 15 years। ওকে, তারপর -1 ব্র্যাকেট ক্লোজ ইন্টু a হচ্ছে 2000 ইন্টু d হচ্ছে 0.75 মানে 0.75 ইন্টু f হচ্ছে 3, LSF will be 1
So into 1 divided by r. R is again 0.075. কত আসছে? এটা 1 মিনিটেও লাগে না ক্যালকুলেট করতে, এত টাইম লাগছে। So what is the value you are getting? Anyone? n equals to কত CSA আসছে? What is the value of n in CSA? হ্যাঁ, অর্পণ বলো, বা ত্রিনঞ্জন, মনিরুল, এই কয়েকজনই আছো কেন গো আজকে এত কম অ্যাটেন্ডেন্স? হয়েছে? So what is the value? 4 2 8 9 9 414, এটা কি আসছে? হ্যাঁ ম্যাম, এটাই আসছে। তো বলছো না কেন? আমি হ্যাঁ, ভাবলাম এত বড় ভ্যালু আসছে, ঠিক তা কি? আমি কি কি বললাম তোমাকে? দিস ইজ নিউ কিউমুলেটিভ। কালকে ক্লাসে কি বলেছিলাম আমি, আগের দিন ক্লাসে? ইট ইজ ফর हाउ मेनी इयर्स? 15 इयर्स। হুম 15 इयर्स में कितना रिपीटेटिव वे में गाड़ी आएगा? आज के दिन में 10 टो आया, कल 20 टो आएगा, तो क्यूमुलेटिव कितना हुआ? 2 दिन में 30 हो गया। तो थ्रू आउट द ईयर कितना आएगा? तो ऑब्वियसली इट विल बी अ ह्यूज नंबर ना, इसीलिए तो मिलियन में हम लोगों को कन्वर्ट कर देना है छोटा सा वैल्यू आने के लिए। अब इसको मिलियन एमएसए में कन्वर्ट करके बोलो कितना आएगा। तो फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू मिलियन वैल्यू क्या करोगे तुम? 1 मिलियन मतलब क्या, कितना होता है? 10 टू 9 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कितना होता है? So to convert this into MSA, we need to simply multiply or divide it by 10. मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू पावर -6 होगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 6 होगा। So 42.89, ओके। तो 42.89 इज MSA, इतना MSA ट्रैफिक होगा, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा। जो भी डाटा दिया गया है इसके लिए इन 15 इयर्स कितना क्यूमुलेटिव ट्रैफिक आ रहा है? 42.89 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल आ रहा है, ओके, क्लियर? तो दिस इज सिंपल, ये वाला तुम लोग का न्यूमेरिकल एमसीक्यूज इन सब में आ सकता है, ओके। नाउ लेट अस डू द डिजाइन। अब आते हैं मेनली डिजाइन में। हम क्या बोले थे? वी नीड टू कैलकुलेट एन, सीबीआई दिया रहेगा, बोलेगा थिकनेस डिजाइन करो, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मेथड, ओके। सो लेट अस सी क्या है। डिजाइन द पेवमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू नेशनल हाईवे। सी नेशनल हाईवे बोल दिया, मतलब क्या देगा इसमें? ईयर नहीं देगा, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईयर? कितना होगा? एन का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? नेशनल हाईवे अगर है तो, ठीक है। इसके लिए तुम लोग ये कोड भी यूज कर सकते हो, हम तो नोट्स में दिए ही है, लेकिन यू कैन सिंपली सी द कोड, ओके। सी डिजाइन लाइफ, दिस इज द एन वैल्यू, राइट? तो यहाँ पे देखो क्या, इट इज रिकमेंडेड दैट पेवमेंट्स फॉर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे शुड बी डिजाइन फॉर द लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, ओके। सो नेशनल हाईवे बोला है तो योर डिजाइन पीरियड विल बी, डिजाइन लाइफ विल बी 15 years. So in this case your n will be 15 years, okay। दिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में घुमा के दे देगा। So with the following data,
ठीक है, और क्या क्या डाटा लगेगा, टू लेन सिंगल कैरेज वे, सो व्हाट यहाँ से क्या आएगा, फ्रॉम दिस विच वैल्यू वी विल बी गेटिंग, विच फैक्टर, टू लेन सिंगल कैरेज वे, ये वाला डाटा से हमको इंफॉर्मेशन से कौन सा डाटा मिलेगा, ওই ম্যাম ওই এটা ওই 0.75টা हाँ, 8টা नाम नाम की डी से डिनोट करते हैं, नाम क्या है, ওটা তো মনে নেই। এক্ষুনি বললাম ভুলে যাচ্ছ, লেন ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর, ওকে, এবার মনে থাকবে, হ্যাঁ ম্যাম। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डी ट्यूनोशन, ओके, तो कितना आएगा, टू लेन सिंगल कैरेज, वो पिछले वाला गई है तो 75%, सो इट विल बी 0.75, ओके क्लियर। नाउ ट्रैफिक काउंट एज पर लास्ट काउंट, ये वाला देखो यहाँ पे, अब देखो ट्रैफिक काउंट एज पर लास्ट काउंट, मतलब कंस्ट्रक्शन जब चालू हो रहा है दैट इज आवर लास्ट काउंट, ठीक है, हम अभी काउंट नहीं करेंगे ट्रैफिक, अब जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तब हम लोग काउंट करेंगे ट्रैफिक को, दैट विल बी ए, ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रैफिक काउंट एज पर लास्ट काउंट, तो ये क्या है, बिफोर कंस्ट्रक्शन वाला है, ओके, सो दिस इज विच वैल्यू, ए या पी, ये ভ্যালু ম্যাম। A मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन, दिस इज बिफोर कंस्ट्रक्शन, सो दिस इज P, আচ্ছা প্রেজেন্ট বলছেন এটা। हाँ ठीक है, तो ये वाला आ गया, टाइप ऑफ रोड नेशनल हाईवे, ओके, बीडीएफ प्रोवाइडेड, ओके, डिजाइन सीबीआर बोलो, देखो डिजाइन बोला है तो सीबीआर तो देना चाहिए, 4 भी दे दिया है, ओके, अब क्या क्या चाहिए, ये दिस इज योर एफ, ओके दिस इज एफ, तो देखो ये वैल्यू मिल गया, कैलकुलेट एन, एन निकालो, यहाँ पे और एक फैक्टर लगेगा जो दिया नहीं गया, लेटेस्ट एज्यूम, तुम लोग एज्यूम करके कर लो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो यही है जो था, यही है फॉर्मूला, तो इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, एन है 15 ईयर्स, डी है 0.75, ठीक है, पी है तुम्हारा, अच्छा ये तो तुम लोगों ने नोट डाउन किया है, तो ये वाला नोट डाउन करो पहले, पी इज 322, सी इन क्वेश्चन हमको पी लगेगा, इन क्वेश्चन हमको ए लगेगा, राइट, फॉर्मूला में ए लगेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कैलकुलेट दैट फर्स्ट, तो ए इक्वल्स टू कितना है, P, this is the present value, this is the future value, ठीक है, तो P1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते थे ना वैसे है, ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट है, ठीक है, इनटू X, अब यहाँ पे N नहीं देंगे, यहाँ पे हम X देंगे, दिस X इज पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज डिजाइन पीरियड, ओके, एंड इट मे बी 3 to 4 years, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम 3 से 4 ईयर कोई भी ले लो, ठीक है, पकड़ के ये वाला करो, सपोज हम बोले ठीक है 3 पकड़ लो, x का वैल्यू 3 पकड़ के करो, अब यहाँ पे क्या है, p इज गिवन, ठीक है, x हमने एज्यूम कर लिया है, बचा क्या r, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r का वैल्यू क्या होगा, r इज व्हाट, r क्या था, ये ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, तो कितना रेट में बढ़ रहा है, तो रेट में बढ़ रहा है मतलब पर ईयर कितना बढ़ रहा है, दैट इज द आर, ओके, पर ईयर कितना बढ़ रहा है, मतलब रेट मतलब क्या, टाइम के रेस्पेक्टिव ही होता है, सो पर ईयर कितना बढ़ रहा है, दैट इज द ट्रैफिक ग्रोथ रेट, सो एज आई सेड आर इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड, एक वैल्यू एज्यूम करना है, व्हाट वाज दैट वैल्यू, कितना परसेंटेज होता था, पर एनम कितना परसेंटेज बढ़ता है, এক্ষুনি বলছি এক্ষুনি বলে যাচ্ছ, কি বলবো, 7.5% মনে পড়লো, তো এটা যদি লেখো তাহলে দিস উইল বি 0.075, ओके, तो पहले ए कैलकुलेट करो, हो गया, आर का वैल्यू एज्यूम कर लिया, ये भी हो गया, एक्स का वैल्यू एज्यूम कर लिया, ये भी 3 पकड़ लिया, करके कितना आएगा देखो, योर ट्रैफिक इज 322, पी इज 322, सो 322 1 प्लस आर হচ্ছে 0.075, तो 322 into 1.075 टू द पावर एक्स, एक्स सपोज हमने पकड़ा 3 इयर्स, यहाँ पे हमने कितना पकड़ा है, लेटेस्ट से एक्स हमने यहाँ पे 3 इयर्स ही पकड़ा है, ठीक है, कैलकुलेट करो, 3 इयर्स पकड़ के ए का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो, ए इक्वल्स टू हाउ मच, पी इज 322, কত আসছে, 322 1 plus 0.075 to the power 3,
তোমরা কি একদম করবেই নাই ভেবে নিয়েছো নাকি? 400 আসছে, 400 সিভিপিডি। না হ্যাঁ, ম্যাম 430 আসছে ম্যাম। 430, ম্যাম 322, x r equals to 0.075, x equals to 3। না ম্যাম ও 400 x আছে। ইকুয়াল টু 3, আচ্ছা আচ্ছা, আমি হুম, x ইকুয়াল টু 4। ठीक है, ठीक है, तुम 4 ধরেও করতে পারো, কোনো চাপ ওকে নেই। ম্যাম, ওকে ম্যাম, হ্যাঁ 400 ओके, আসছে सी, ম্যাম। ए वैल्यू यू ऑब्टेन, डी पता है, एन पता है, एफ पता है, सब पता है। ओके, नाउ सिंपली कैलकुलेट एन, कितना आएगा कैलकुलेट करके बोलो। दिस इज द फॉर्मूला। अगर एलएसएफ नहीं दिया है तो एज्यूम इट एज 1। करो, 400 इंटू 365 इंटू 1.075 टू द पावर n হচ্ছে কত, 15। see this n is again design year, okay, design year, design life, so n is 15। नेशनल हाईवे बोला, नेशनल हाईवे का n कितना होता है, 15 होता है। ओके, तो 15 माइनस 1 इंटू d है তোমার কত, 0.75, f আছে কত, f এর ভ্যালু কত দিয়েছে, 2.5, f, 2.5। হ্যাঁ f is 2.5, 2.5, LSF1 divided by 0.075। এত আসছে, আমাদের এত কম এলো। ঠিক আছে, 7150252 আসছে। मैम 71499902। अच्छा ठीक है, सो दिस मच विल बी, यूनिट विल बी व्हाट, उसका यूनिट क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करके जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट क्या होना चाहिए, CSA, okay, cumulative standard axle, CSA, okay, but for design purpose we need n in MSA, okay, in terms of MSA। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻6 से, तो कितना आएगा, 7.15 MSA आएगा। ठीक है, तो सी 7.15, क्लियर, क्लियर হলো। ডিভাইড বাই 10⁻6 কর দো না, যা ভ্যালু আছে ডিভাইড বাই 10⁻6 কর দো। এত আসছে কি আসছে না বলো। 7.15 MSA आ रहा है सबका। ডি কত? কি হলো, এই সাধারণ ক্যালকুলেশন। এটাকে দেখো, এটাকে তুমি 1.075 লিখো, এটা 1 প্লাস না করে 1.075, এবার 15 মাইনাস 1 করো, আগে এটা বার করো, তারপর এদেরকে মাল্টিপ্লাই করো, তারপর ডিভাইড করে দাও এটা দিয়ে, হয়েছে। যদি করছো তো তাহলে বললো হ্যাঁ করছি ম্যাম, নাহলে আমি আগে। 8 5। ক্যালকুলেটর নেই, তোমরা মোবাইলে করছো। হ্যাঁ ম্যাম। তার জন্যই ছেড়ে দাও, এটা আসবে, ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে বলছি। देखो सी n is 7.15 MSA, CBR 4%, ओके, so you can use total thickness, अगर पूछा गया तो you can use the chart, and if they will ask you individual thickness so you can use the catalog।
ठीक है, ये चार्ट से अगर बोलेगा तो कितना आएगा बोलो, 7.15 है, राइट। सो हम लोग का यहाँ पे समवेयर यहाँ पे होगा। ओके, सो देखो traffic is 7.15, so it will be somewhere here. Okay, and your CVR is what, 4. so कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ। okay, so let us do। तो 7.15 सपोज हम लोग पकड़े थे, इधर इधर में होगा सपोज, ठीक है। अब 4 में जाओ, फोन 4 कौन सा है, देखो अगर CBR टू 10 होता तो ये यहाँ पे रुकना पड़ता, 9 है तो यहाँ पे, लेकिन हमारा तो सॉरी, राइट, 4 यहाँ पे। ओके, तो इट इज समवेयर हियर। अब इसको तुम इस तरफ में जाओ करके, सो दिस विल गिव यू दी टोटल थिकनेस ऑफ द पेवमेंट। सो बाय आई एस्टिमेशन, या इसको डिवाइड करके देख सकते हो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 660 mm, राइट। 660 mm लग रहा है ना ये, ठीक है। 50 के थोड़ा ऊपर है तो हमने ले दे दिया 660। ओके, तो टोटल थिकनेस इज दिस मच mm। क्लियर, क्लियर। देखो 7 पॉइंट ट्रैफिक विल गेट फ्रॉम दिस एक्सिस, ये है MSA में है, 7.15 आ रहा था हम लोग का MSA आफ्टर कन्वर्शन। तो यहाँ पे जाओ 7.15, अब ऊपर में जाओ, कौन सा कर्व यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द CBR वैल्यू। तो CBR इज आवर 4, तो CBR 4 ये वाला चार्ट है। तो देखो यहाँ पे ये चार्ट, ये वाला कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, ये वाला लाइन को यहाँ पे स्टॉप करो, देन go horizontally in this axis, and this axis will give you the pavement thickness, okay, that is total pavement thickness, which is 660 mm। clear, বুঝলে? হে ভগবান, তো মন রাত করেছো নাকি? হ্যাঁ না বলো। Yes, ma'am. জবরদস্তি ইয়েস ম্যাম বলা দরকার না, বুঝলে বলো, বুঝিনি তাহলে বুঝাবো আবার। ক্লিয়ার তো? সি টোটাল थिकनेस only we will get only total thickness from this chart। okay, now using the catalog, अब चलो कैटलॉग में चलते हैं, लेट अस सी, डायरेक्ट इससे करते हैं। तो अब देखो कौन सा कैटलॉग यूज करेंगे, हमको बोलो तुम। ये वाला यूज कर सकते हैं फॉर आवर केस। हम लोग का MSA है कितना, 7.15, तो ठीक है, ये 1 to 10 में बीच में है। ओके, बट CBR इज 4, तो ये हम नहीं कर सकते। ओके, नाउ ये वाला कर सकते हैं, ये वाला चार्ट कैटलॉग, ये पूरा एक ही चीज है। ओके, एक ही प्लेट है। कैन वी यूज दिस कैटलॉग? না না, তার परेरটা হবে যেটা 4% यस यस 4%। ओके, अब देखो हम लोग का क्या है, MSA 7.15 है, 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है। अगर 1 डायरेक्ट होता है तो सिंपल डायरेक्ट यहीं से निकल आया, 5 अगर होता तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आ जाए, नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट टेबल से यहाँ पे निकाल के छाप दो। ठीक है, 10 आ गया तो यहाँ से निकाल के लिख दो कि फर्स्ट टोटल थिकनेस 700 है, फिर इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस ये सब है। ओके, this is bituminous core, this is dense bituminous macadam। okay, this is granular base, this is granular sub base, दोनों मिलकर ही एक ही वेयरिंग कोर्स है, ऊपर वाला लेयर है दोनों मिलकर। ठीक है, लेकिन हम लोग का आ रहा है कहाँ पे, हम लोग का आ रहा है इन दोनों के बीच में, समवेयर हियर, विच इज योर 7.15। ओके, तो फॉर 7.15 ट्रैफिक वैल्यू टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, देखो हम लोग का ग्राफ में भी आया था कितना, 660, तो ये बीच में ही है 660। ओके, अगर ग्राफ नहीं दिया, ये कैटलॉग दिया, तो हाउ यू विल एस्टिमेट, कैसे निकालोगे ये वाला 7.15? Interpolation. इंटरपोलेशन कैसे इंटरपोलेट करते हो, कोई एक एग्जांपल देखो, बोलो हमको सिंपल। देखो इंटरपोलेशन, सपोज ये वाला वैल्यू अगर हम बोलेंगे, दिस इज सपोज कैपिटल T, ठीक है, ये हम लोग अननोन है, कैपिटल T है, तो क्या करोगे, तो हम लोग करेंगे T माइनस 620 अगर लिखोगे इस तरफ में, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा होना चाहिए था, ये वाला ट्रैफिक का वैल्यू, तो 7.15। ठीक है, माइनस माइनस, और 620 का तुम्हारा करस्पॉन्डिंग कितना है, ट्रैफिक 5 है, तो यहाँ पे 5। ओके,
अब नीचे जाओ, अब देखो इन दोनों का सब्स्टिट्यूट, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 700 माइनस 620, ठीक है, तो 700 माइनस 620, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो, कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 700 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना था, एन वैल्यू 10 था, तो देखो 10 माइनस है माइनस 620 का कितना है 5 है, तो यहाँ से एवरीथिंग इज नोन ओनली टी इज अननोन, तो टी कैलकुलेट करो। सिमिलरली सब कई वैसे करना है, अब ये टी हटाकर अब तुम यहाँ पे लगा दो टी, टी डैश या T1, ठीक है, अब इसमें होगा तुम्हारा T2, ठीक है, ये वाले के बीच में होगा तुम्हारा T3, ठीक है, फिर ये वाला होगा तुम्हारा T4, तो करते करते इंडिविजुअल लेयर का भी थिकनेस यू कैन इजीली कैलकुलेट। क्लियर, क्लियर, ये सेम यहाँ पे T3 के जगह पर बिठा T1 बिठा दो, T1 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7115 माइनस 5, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 25 अगेन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, सेम। क्लियर, so this way you can calculate the total as well as individual thickness, okay, so আমি here I গ্রাফ have, ইউজ করব না এইখান থেকে ইউজ করব? it depends upon the question, okay, if they provide you the graph that means you have to calculate only the total thickness, तो simply graph से वहां पे total निकाल लो, ओके। अगर बोलेगा नहीं तुम लोग ग्राफ नहीं, ग्राफ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ बोला डिजाइन करो, दैट मींस आईआरसी कोड इज तुम लोग का वो है, यू कैन यूज दैट कोड, तो तुम्हारे ऊपर है, टोटल भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो टोटल भी तो आ रहा है, सो इट इज बेटर टू यूज दिस स्प्लिट, ओके, बिकॉज यू विल नो इंडिविजुअल लेयर ऑल्सो, टोटल का भी हमको मिल जाएगा, सो दिस वे आई हैव कैलकुलेटेड, ओके, ठीक है, इंटरपोलेशन के थ्रू से। क्लियर, तो मेनली है एन निकालना ही थोड़ा टफ है, क्योंकि वहां पे देयर आर सेवरल फैक्टर्स, यू हैव टू आइदर एज्यूम और यू नीड टू ক্যালকুলেট, ওকে। ওকে, তাহলে তোমরা কি ব্রেক নিতে চাও তাহলে নাও, আমি 11:05 নেক্সট ক্লাস স্টার্ট করব, 8 মিনিট ব্রেক, ঠিক আছে। এ রে বাবা, এটাতে তো হ্যাঁ না বলো।